Hello and welcome to this session. This session is about course-based admission in Canada, where you don't need a supervisor and you there are more chances of admission. You don't need research experience as well. And we are going to complete. This session will be in Urdu because most all of the participants are from um Pakistan and Bangladesh, and both of countries people can understand Urdu or Hindi. Therefore, we will go with Urdu/Hindi, and you can ask question in English or Urdu or any Hindi, any language which with which you are comfortable. So, okay, I invite my guest of this session, which is Dr. Ibtisam Ahmed. He did his DVM from Pakistan, and these days he's at University of Alberta. uh, I already shared his profile with you. Like he's doing masters, and his program is about meat science, which is a subject of veterinary medicine, and other people can also read study this subject. So he's a student of Master of Science in Agriculture, Food, and Nutritional Science with a specialization in meat quality at University of Alberta in Canada, and Mm, he has taken out some time for this session. I'm grateful to him for taking this time, and I hope this whole session will be very useful for all those people who have money, who have resources, but they don't know how they can get admission and they can just come quickly to Canada. We already know a lot of pathways which are lengthy pathways, like through which I came. That was graduate research assistantship. It took a lot of time. You have to find a supervisor who can give you acceptance, and then you can apply for admission. But the way Ibtisam came, I think it was just apply directly to university and you get admission and come. There is no research work. There is no load of publication. That just read the subjects and clear the subjects. Therefore, I will ask Ibtisam to give overview of his admission process, then different universities in Canada who are offering courses to veterinary students, nutrition students, food and technology student, veterinary microbiology students. We can adjust in them, and then which category of visa he applied, and which are other categories too. Then third, he will tell about if you're on course base and you're paying fee, then how you can recover that fee by teaching assistantship or other possibilities. And fourth, maybe he if there will be time, he can talk about social life of students and his own experience, how he's feeling in Canada these days, and some more stuff which he will talk about. So let's welcome Dr. Ibsam. So welcome Dr. Ibsam, and please start now. Thanks. थैंक यू हमजा भाई, बहुत शुक्रिया। आपने एक सेशन रखा है और हमारे पास इतनी स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं थी होती। आप यूट्यूब तो करते हो कि हाउ टू गेट एडमिशन इन कनाडा, लेकिन जब डीवीएम की बात आती थी तो पता नहीं था चलता कि कनाडा में सिर्फ यही पता चलता था नेवले है, प्रैक्टिस है। लेकिन जब आप इस साइड पे देखते थे कि मास्टर्स पे, तो बड़ी वेग इन्फॉर्मेशन थी। तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि 2022 में मेरा डीवीएम कंप्लीट हुआ यूआफ से। तो फिर मैंने एनिमल न्यूट्रिशन में जॉब शुरू की, एनिमल फीड में 6 मंथ तक जॉब की। साथ मैंने फिर बाहर अप्लाई करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मेरी जो डेस्टिनेशन थी वो नॉर्वे थी। नॉर्वे तब बिल्कुल फ़ी नहीं थी होती मास्टर्स की, लेकिन उन्होंने फ़ी इम्प्लीमेंट कर दी तो वो ऑप्शन चले गया। फिर मैंने फिनलैंड देखा। तो बड़े बच्चे जो सोच रहे हैं तो वो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैंने 8 प्रोग्राम में वहाँ पे अप्लाई किया तो वो कोई भी प्रोग्राम हमारे मुताबिक नहीं है। तो अल्टीमेटली आपका टाइम वेस्ट होगा, आपके पैसे ज़ाया होंगे, और आपको उधर एडमिशन नहीं मिलेगा। डीवीएम के रेलिवेंट कोई उधर कोई भी डिग्री नहीं है। उसके बाद सर एसएमएस मंडस में किया, तो वहाँ पे भी मेरा सेल्फ फंडेड पे आया। तो लास्ट जो मेरे पास डेस्टिनेशन बची वो कनाडा की थी। तो फिर मैंने देखा, यहाँ पे खुद स्टडी किया, सेल्फ स्टडी। तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा ये सारी चीज़ें सीखने में, जो आप सिर्फ एक सेशन में सीख सकते हैं। अब सबसे पहले बात आती है कि डिग्रीज कौन कौन सी अवेलेबल हैं जो डीवीएम के बाद, या आप कह लें कि माइक्रोबायोलॉजी जिन्होंने की होती है बीएससी, वो या एचएनडी वाले आ सकते हैं। और इवन मैं वो भी बताऊंगा, जैसे बहुत सारे बच्चे डीपीटी के होते हैं या बीडीएस के हैं, वो उनके पास कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं।
सबसे पहले अगर हम डीवीएम वाले, Sorry, Dr. Sam, to interrupt you. Please, can you little bit tell your profile, like academic profile, what were your या achievements, like श्योर little श्योर bit to make some श्योर। idea. सबसे पहले मैंने जो मैट्रिक है, मैट्रिक मैंने अपनी तहसील जुमरा से किया था, वो मेरा 93% थी। उसके बाद मैंने एफएससी की पंजाब कॉलेज ऑफ साइंस फैसलाबाद से, उसमें मेरे 86% मार्क्स थे। फिर मैंने डीवीएम किया यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में, उसमें मेरी परसेंटेज सीजीपीए थी 3.61। लेकिन इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे पास कोई रिसर्च नहीं थी, मेरे पास कोई पब्लिकेशन नहीं थी, कभी कोई सोसाइटी मैंने ज्वाइन नहीं थी की, कभी कोई कॉन्फ्रेंस, कोई सेमिनार, कुछ भी मैंने नहीं था किया। और ना मेरे पास कोई ऑनलाइन जो बच्चे कोर्सेरा वगैरह पे करते हैं सर्टिफिकेट, वो भी मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो ये मेरी प्रोफाइल थी। इसके अलावा मेरे पास 6 मंथ का जोन सा वो वर्क एक्सपीरियंस था, और वो भी सेल्स का एक्सपीरियंस था। वो आप जिसे कह सकते हैं एग्जैक्ट एक्सपीरियंस, वो भी नहीं था। और अब आता IELTS है, में बैंड। आर्ट्स में मेरे बैंड थे 7 बैंड ओवरऑल थे। तो वो उसका भी हम एक पार्ट बनाएंगे कि आप खुद कैसे आर्ट्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, और वो भी यूट्यूब की मदद से, और जो आर्ट्स की प्रैक्टिस बुक्स हैं उसकी मदद से। क्योंकि अगर आपके बैंड स्कोर अच्छा होता है, तो अगर दो बच्चे सेम लेवल पे आ रहे हैं, तो वो फिर इस तरह की चीज़ों पे एक बच्चे को एडमिशन दे देंगे और एक बच्चा पीछे रह जाएगा, अगर आपका एकेडमिक स्कोर जो है वो बिल्कुल सेम है। Yes, क्लियर। one more thing. Yeah, thanks. We will allow you to ask plenty of questions after the talk of Dr. Ibtisam. So please be patient and keep your questions at end. I will ask you to raise your hand, then you will unmute yourself, and then you can ask questions. Meanwhile, if you want, you can just put in chat box to remind yourself. Otherwise, the correct actual answers will be given at after the talk of Dr. Ibtisam. Yes, please continue. Sorry for all interruptions. नो नो इशू। अब सबसे पहले डीवीएम में कौन से ऑप्शंस आपको कनाडा में मिलते हैं? तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा में है। ये एक प्रोग्राम है एग्रीकल्चरल फूड एंड न्यूट्रिशनल साइंस। इसमें दो स्पेशलाइजेशन आती हैं, एक मीट क्वालिटी की स्पेशलाइजेशन आती है और एक फूड क्वालिटी की स्पेशलाइजेशन आती है। मीट क्वालिटी में कंपटीशन कम है, इसलिए कंपटीशन कम है क्योंकि उसमें जस्ट बच्चे आ सकते हैं डीवीएम से। लेकिन जो फूड क्वालिटी है उसमें एचएनडी वाले भी आते हैं, उसमें माइक्रोबायोलॉजी वाले भी आते हैं, और जो उनसे इसके रेलिवेंट जो पाकिस्तान में जो बैचलर होता है वो सारे बच्चे फूड साइंस में आ जाते हैं। तो अगर आपने डीवीएम किया है तो सबसे बेस्ट ये वाली डिग्री है मीट क्वालिटी वाली। और इसमें आप पढ़ेंगे क्या? इसमें बेसिकली आप पोल्ट्री भी पढ़ेंगे, आप बीफ भी पढ़ेंगे, आप मीट साइंस को भी पढ़ेंगे, आप प्रिजर्वेशन के टूल्स को भी पढ़ेंगे, तो आप स्लाटरिंग प्रोसेस को भी देखेंगे, प्री मोर्टम कैसे होता है कि जानवर अगर बीमार है तो किस डिजीज में उसका कौन से पार्ट को कंडेम करना है। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और इसके अलावा इसका क्या आपका फ्यूचर होगा कनाडा में, तो मीट इंस्पेक्टर की बहुत जॉब्स आती हैं। फिर फ्रोजन मीट की मार्केट यहाँ पे बहुत बड़ी है। जैसे उधर सिर्फ 3 से 4 ब्रांड आपको नजर आते हैं, K&N सबरोसो है, इधर बहुत ज्यादा ब्रांड्स हैं। ये सारा हो सकता है। इसके अलावा जोन सा है कि आप अगर जाना चाहते हैं पोल्ट्री में, एक बात आप याद रखिएगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्ती होती है कि एज अ वेट अगर आपने काम करना है तो आपको नेवले ही देना पड़ेगा। लेकिन जितनी मैनेजमेंट है पोल्ट्री की, जितनी कंपनीज हैं, वो एज अ मैनेजर आपको रख सकते हैं। आप उनके फार्म्स को विजिट करेंगे तो आप मैनेजर आप क्या करेंगे कि एक उनको प्लान बना के दे सकते हैं वेट को, और वेट के लिए बड़ा आसान काम हो जाता है, और आपकी भी सैलरी काफ़ी अच्छी होगी। तो ये तो एक डिग्री की बात हो गई। इसके अलावा एनिमल साइंस की डिग्री है मैनिटोबा में, लेकिन उसमें क्या मसला आता है कि उसमें मैंने अप्लाई किया, मेरा एडमिशन भी हो गया, लेकिन उन्होंने मुझे कोर्स बेस में भी 1 मंथ का टाइम दिया कि आपने प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस लेनी है। अब उसमें मसला क्या आता है कि प्रोफेसर जो एक्सेप्टेंस दे देते हैं वो साल पहले दे देते हैं। जैसे मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ गल्फ में भी एनिमल बायोसाइंस की है, तो मैंने प्रोफेसर को ईमेल की तो उन्होंने मुझे 2023 में 2024 की एक्सेप्टेंस दी। तो अगर आपने अपने ऑप्शंस को ज़्यादा करना है तो अभी से आपको चाहिए कि आप प्रोफेसर्स को ईमेल करें। और ईमेल करने का जो बेस्ट टाइम है वो पाकिस्तान के जो रात के 9 या 8 बजे का टाइम होता है, तब करना है, क्योंकि प्रोफेसर इधर तब वो ईमेल्स
खोलते हैं। दूसरा, अब हमें प्रोफेसर बताते हैं, जब हमने उनसे पूछा कि आप ईमेल्स का रिप्लाई क्यों नहीं करते, तो वो तो एक कहते हैं कि थाउजेंड ऑफ ईमेल्स आती हैं तो वो पॉसिबल नहीं रहता। दूसरा ये इशू है कि हमें सिर्फ 4 बच्चों की फंडिंग अलाउड होती है, और वो ऑलरेडी हमारे पास आ जाते हैं पहले मंथ में, और बाकी फिर पूरा साल जो आते रहते हैं, हम चाहते हुए भी उनका कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ये जो प्रोफेसर की हायरिंग होती है या सुपरवाइजर का अप्रूवल है, ये टफ है। उसके अलावा आपके पास जो यूनिवर्सिटी ऑफ मैगिल है उसमें भी कोर्स है वेटनरी का, यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचुआन में भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में भी है। अब मैं आपको एक ना डेमो देता हूँ कि बेसिकली आपने कोर्सेज चेक कैसे करने हैं। अगर आप सीख जाओगे तो फिर आप खुद बैठ के जोन सा रोज की एक यूनिवर्सिटी, मैं पूरी एक लिस्ट डॉक्टर साहब को एक दे दूंगा, एक तस्वीर है जिसमें कनाडा की सारी यूनिवर्सिटीज का नेम लिखा हुआ है, सारे कॉलेजेस का नेम लिखा हुआ है। तो आपने बेसिकली क्या करना है, कैसे आप प्रोग्राम्स को सर्च कर सकते हो। जैसे अभी आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी, तो मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा गूगल पे लिख लिया, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा लिखा। तो यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा के आपने किस ऑप्शन पे जाना है, ग्रेजुएट प्रोग्राम के ऑप्शन पे। जब आप इसको क्लिक कर लिया तो ये जो सा ये आ गया। उसके बाद एक मिनट में इसको थोड़ा सा स्लाइड कर लूँ। सॉरी, मैं एक्चुअली कभी मैकबुक चलाई नहीं, और इधर आके मैंने मैकबुक ले ली है, और इसका ना बहुत ज़रा थोड़ा सा ना ये, अब इधर आपके पास आ गया। तो इधर आप प्रोग्राम सारे आपके सामने आ गए हैं। ठीक है, ये देखें, ये एग्रीकल्चर, आर्ट्स, एजुकेशन, इंजीनियरिंग सारे आ गए हैं। अब आपने एक गलती नहीं करनी कि अब आपने इधर से खोला, आपको मीट कहीं पे नज़र नहीं आ रहा और आप कहें कि मीट का तो इधर प्रोग्राम ही नहीं है। तो एक्चुअली होता क्या है कि ये एक प्रोग्राम का बड़ा नेम होता है और इसके अंदर स्पेशलाइजेशंस होती हैं। तो अब आप खोलेंगे एग्रीकल्चर, लाइफ एंड न्यूट्रिशनल साइंस, या जस्ट आप वैसे जो सा है अगर कर सको तो आप सिंपल मीट क्वालिटी भी लिखोगे तो वो सर्च में मीट क्वालिटी आ जाएगा। इधर आपने मीट, ये देखें मीट क्वालिटी आ गया। तो ये पूरा प्रोग्राम खुल गया, और अब इसमें जौन सी हैं वो 2 स्पेशलाइजेशन होती हैं। ये आपकी वो बता रहे हैं कि एंट्रेंस रिक्वायरमेंट क्या है, कि आपका जो सीजीपी है वो 3 होना चाहिए कम से कम। अगर आप कोर्स बेस में आ रहे हैं, अगर आप थीसिस बेस में आ रहे हैं तो 3.3 होना चाहिए। और एक और बात याद रखिएगा कि कनाडा में मोस्टली यूनिवर्सिटीज जौन सी हैं वो लास्ट 2 ईयर का सीजीपीए कैलकुलेट करती हैं। तो अगर शुरू में बच्चों के इतने मार्क्स नहीं आते तो आपने उसकी फिक्र नहीं करनी, आपने अपना कैलकुलेट कर लेना लास्ट 2 ईयर्स का। तो आपने उधर देख लेना कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। अब इधर ही ये देखें कि ये इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट भी बता रहे हैं, जो कि अल्बर्टा, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा की 6.5 है, और किसी मॉड्यूल में आपके 6 से कम नहीं होने चाहिए। फिर ये आपको बता रहे हैं कि आपको बेसिकली चाहिए क्या। आपको एक सीवी चाहिए, तो सीवी आप जो सी है अच्छी सी बनाएं, उसको ब्रीफ रखें, और जो सा है उसमें आप मेंशन करें, अपने मार्क्स वगैरह मेंशन करें, अपनी इंटर्नशिप मेंशन करें, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर देना। उसकी ये रीज़न होती है कि हम अगर फ्रेशली ग्रेजुएट हैं, फ्रेशली ग्रेजुएट की सीवी 2 से 3 पेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मोटिवेशन लेटर आ जाता है, मोटिवेशन लेटर भी 1 पेज का होना चाहिए। तो इस पे भी आपने बेसिकली क्या उनको बताना है कि जब आप लिखोगे, आप कहोगे कि मैंने अपने जो वेटन डीवीएम किया है इसमें मैंने नेक्रोप्सी प्रैक्टिसेस पढ़ा है, मैंने मीट इंस्पेक्शन पढ़ा है, मैंने फूड सेफ्टी एंड जोनोसिस पढ़ा है, मैंने पैथोलॉजी पढ़ा है। तो आप उनको बताओगे कि आप अलाइन करते हो, और किस तरह आपने क्या इश्यूज देखे हैं, और पाकिस्तान में मीट इंडस्ट्री के क्या इश्यूज हैं। कि हम जो उनसा है वो स्लॉटरी वो एनिमल करते हैं कि जो क्या होता है, बीमार होता है। तो ये सारा स्लॉटिंग प्रोसेस को सीखने के लिए, और अभी भी पाकिस्तान में अनऑर्गेनाइज्ड मीट मार्केट है, पूरी दुनिया में मीट जोन सा है वो सुपर मार्केट में आ गया, हमारा अभी भी वो जो वेंडर्स के पास बिकता है। तो ये आपको इधर डेडलाइन भी शो हो रही हैं। देखिए कितना इजी होता है इधर से देखना। अब इस तरह करके ये टोटल 2 प्रोग्राम नज़र आ रहे हैं, एक ऊपर वाला प्रोग्राम है, नीचे वाले में 2 आपको मिल जाएंगे। कि एक आपको आ जाएगा मीट क्वालिटी में, ये देखें फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी का एक निकल आया, और एक मीट क्वालिटी का निकल आया। तो कुछ भी समझ ना आए, आप डॉक्टर साहब को ईमेल कर दें, डॉक्टर साहब से मेरा नंबर ले लें, आपने मेरे से पूछ लेना है, इन्फॉर्मेशन की वजह से आपने पीछे नहीं रहना।
अगर फिर भी इतने ऑप्शंस होते हुए भी आप नहीं कर पाते तो ये फिर आपका कसूर है। मैं आपको मुकम्मल और भी पर्सनल लेवल पे भी गाइड कर दूंगा। तो ये सारा इसका निकल आया। अब प्रोसेस क्या है कि आपने क्या करना है कि एक तो आपने डिग्री अपनी निकलवा लेनी है, अपना ट्रांसक्रिप्ट निकलवा लेना है, और दिसंबर तक आपने अपना आइट्स मुकम्मल कर लेना है। ये चीज़ें चाहिए। अब ये जो मीट क्वालिटी वाला प्रोग्राम है इसकी डेडलाइन होनी है 15 मार्च, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि अब जनवरी या फरवरी में अप्लाई कर दो। आप अप्लाई कर दोगे, उसके बाद 2 मंथ बाद अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो वो आपका एक फॉर्मल सा इंटरव्यू लेंगे, और इंटरव्यू के 1 हफ्ते के बाद आपको एडमिशन लेटर मिल जाएगा। इसी तरह जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ गल्फ है, यूनिवर्सिटी ऑफ गल्फ में एनिमल बायोसाइंस पे प्रोग्राम है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा में एनिमल साइंस है, बेसिकली मोस्टली एनिमल साइंस ही है। कुछ आपको पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलेंगे वेटनरी में, लेकिन उनका इतना ज़्यादा फ़ायदा इसलिए नहीं है कि एक तो वो 1 साल के होते हैं, तो अगर आप 1 साल का करते हो तो आपको वर्क वीज़ा भी स्टडी के बाद 1 साल का मिलेगा। दूसरा, उसमें वीज़ा रेशो भी कम होती है। तो अब आपको निकालना आ गया कि आप जस्ट क्या करेंगे कि यूनिवर्सिटी का नेम पुट करेंगे, और आप उसके ग्रेजुएट प्रोग्राम 100 को देखें, और जो आपको अपने रेलिवेंट नज़र आएगा वो मिल जाएगा। अब एक और प्रोग्राम है कि जो डीवीएम वाले कर सकते हैं, वो है पब्लिक हेल्थ। इसमें कंपटीशन ज़्यादा होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा में इसका बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, यहाँ पे 3 हॉस्पिटल्स भी हैं। तो अगर कोई भी बच्चा एमबीबीएस का है, बीडीएस का है, डीवीएम का है, डीपीटी का है, एचएनडी का है, वो सारे इस प्रोग्राम में, इसमें भी कोई सुपरवाइजर का अप्रूवल आपको नहीं चाहिए, बस आपकी थोड़ी सी सीजीपीए अच्छी होनी चाहिए। और दूसरी एक और बात के, जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज में जो अप्लाई होता है वो फ्री होता है, अनफॉर्चुनेटली कनाडा में ऐसा नहीं है। यहाँ पे अप्लाई की फीस होती है। तो आपने बहुत वाइजली अपने प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करना है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 100 कनेडियन डॉलर फीस है, कुछ में 135 है, और कुछ में 150 है। 150 से ऊपर कोई नहीं, और 100 कनेडियन डॉलर से नीचे कोई नहीं। अब ये हमारा हो गया। और उसके बाद एक लास्ट चीज़ जो मैं ऐड करूँगा एडमिशन वाले चीज़ में, कि कनाडा में बेसिकली 3 इनटेक होती हैं। एक जनवरी इनटेक है, एक मई इनटेक है, एक सितंबर इनटेक है। लेकिन जो मेजर इनटेक होती है वो सितंबर इनटेक होती है, और जो डीवीएम के बाद प्रोग्राम है वो मोस्टली 99% आपको सितंबर इनटेक में मिलेंगे। और इनके एडमिशन जो से हैं वो ओपन हो जाएंगे दिसंबर में, या लेट दिसंबर या जनवरी के स्टार्ट में ओपन हो जाएंगे, और मार्च में ये क्लोज होना शुरू हो जाएंगे। तो उससे पहले आपने अपनी सारी चीज़ों को अपनी को कंप्लीट कर लेना है। डॉक्टर साहब, ये पहला पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अगर कोई इनके क्वेश्चंस हैं तो वो एंड पे एड्रेस कर लें, या साथ साथ जैसे आप कहते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आई वुड रिक्वेस्ट कि काइंडली हम दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के भी जस्ट वेबसाइट्स ओपन करके, और जहाँ तक आप ओपन कर सकें उनके डीप जाके, तो वो एक अच्छा आइडिया हो जाएगा। तो ओके नैरो कर दें उन यूनिवर्सिटीज़ को भी जिस तरह आपने इनको किया, जितना हो सके। ओके ओके। अब ये देखें, इसी तरह आपने यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा लिखना है। अब ये यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा की खुल गई, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट एडमिशन आ गए, और ये आ गया ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ स्टडी आ गया। ठीक है। अब इसके बाद ये सारे अपना बता रहे हैं कि 30,000 स्टूडेंट हैं, और ये आपके प्रोग्राम्स आ गए। ये ए वाले आपको शो हो रहे हैं, और ए में क्या नज़र आ रहा है आपको? एनिमल साइंस के, मतलब एनिमल साइंस में यहाँ पे एमएससी भी है, और एनिमल साइंस में पीआईडी भी है। आप ये एनिमल साइंस को क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये उनकी फैकल्टी आ गई। फैकल्टी में अगर आपने ईमेल करनी हो तो सारे इसमें टीचर निकल आएंगे, और आपने सबका काम पढ़ के उसके मुताबिक ईमेल कर सकते हो। तो इसकी डिग्री मास्टर ऑफ साइंस है, 2 इयर्स है, और कोर्स बेस्ड भी है, और जो आपके पास है थीसिस बेस्ड भी है। प्रोग्राम ऑप्शंस में थीसिस बेस्ड भी है, और कोर्स बेस्ड भी है। तो ये इस तरह करके जो उनसे आप कोई भी यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम जो उनसे वो निकाल सकते हैं। थैंक यू। और इसी भी तरह बता दें। क्या डॉक्टर साहब? जी जी, और भी यूनिवर्सिटीज़ बता दें जो हाँ, आपने इसी देखी। तरह ये देखें, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ
गल्फ को खोलेंगे जिसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है कनाडा में। तो ये इस तरह निकलेगा। और उधर मुझे जो एक्सेप्टेंस मिली थी वो मिली थी अक्वाइन अक्वाइन में मिली थी, जो कि बहुत होती है, लेकिन एक तो वो 2024 की थी। एक ये, दूसरा ये जो मेरा और डॉक्टर साहब वाला प्रोविंस है ये पीआर के लिहाज से बहुत अच्छा है। और जो ओंटारियो वो मेन प्रोविंस है तो वहाँ पीआर भी टफ होती है, तो इन फैक्टर्स को भी। और दूसरा जो यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा की फ़ी है वो बहुत अच्छी है, कि अगर आप पैसों पे पढ़ रहे हो ना तो आप ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर कर लें, दुनिया के कहीं से भी कंपेयर कर लें, इवन कनाडा वाली भी दूसरी यूनिवर्सिटी से कंपेयर कर लें तो बहुत कम है। यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा की जो फ़ी है एक साल पूरे की वो 9400 कैनेडियन डॉलर है। तो अगर आप उसको करें पाकिस्तानी पैसे में तो कल का रेट 212 था, तो वो सिर्फ 19 लाख बनती है पूरे साल की। ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे एक सेमेस्टर की देते हैं, ये दोनों सेमेस्टर्स की मिला के। और गल्फ की फीस जो सी है वो मास्टर्स प्रोग्राम की वो 17,000 से 23,000 है। तो एक ये भी फैक्टर था। अब ये देखें ये निकल आया, तो ये इनके 100 ग्रेजुएट प्रोग्राम्स निकल आए। अब इनमें भी देखें ये सारे लाइन वाइज आगे और आगे लिखा हुआ है कि ये पीआईडी भी एमएससी भी है। तो ये देखें ये एनिमल बायो साइंस निकला है। इस तरह यहाँ पे आपको पैथोलॉजी का भी मिल जाएगा। तो ये देखें ये आ गया, ये देखें इसमें फील्ड है आगे। अब एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स भी है इसमें, एनिमल न्यूट्रिशन भी है, एनिमल फिजियोलॉजी भी, एनिमल बिहेवियर एंड वेलफेयर भी है। ये फिर कोर्स बेस का आ गया, अगर आपने निकालनी है तो ये कोर्स बेस का आगे सारा निकल आएगा। ये आ गया इस तरह करके। अब ये जो डॉक्टर वेंडी पीटरसन ने इन्होंने मुझे एक्सेप्टेंस दी थी, लेकिन वही बात है कि 2024 की थी। तो अगर आप ट्राई करें आपको भी एक्सेप्टेंस मिल सकती है, इतना टफ नहीं होता। बस ये है कि अपनी ईमेल को बहुत लंबा नहीं लिखना। और एक आइडिया के लिए मैं जो उनसे है वो डॉक्टर साहब से ईमेल शेयर कर दूंगा जिसके थ्रू मुझे एक्सेप्टेंस मिली थी। और आप उससे आइडिया ले सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको एग्जैक्टली यूज़ करेंगे तो वो उसका फ़ायदा नहीं है। ये इस तरह ये हो गया। तो ये कोई भी आप यूनिवर्सिटी का इस तरह निकाल सकते हैं, इतना कोई टफ नहीं है। उसके बाद जो सा होता है अप्लाई का भी बिल्कुल आसान होता है, कि सीधा आपने जाना होता है और आप अप्लाई के ऑप्शन पे जाते हैं जो इधर ही अवेलेबल होता है। और बहुत इजी जो सा है इसका अप्लाई का सिस्टम होता है, कि कोई भी बच्चा जो सा थोड़ा सा भी फॉर्म फिलिंग जानता है वो इजीली इसको अप्लाई इसमें कर लेगा। तो उसमें भी तब आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो आप डॉक्टर साहब को टेक्स्ट करें, या डॉक्टर साहब मेरा नंबर शेयर कर देंगे। आप दिसंबर में आपको कोई भी अप्लाई करने में भी इशू आता हो तो आप मेरे से जो सा वो पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब अब मेरे ख्याल से ये हमारा एडमिशन्स वाला तो क्लियर हो गया कि इनको बच्चों को यूनिवर्सिटीज तो निकालनी आ गई होंगी और प्रोग्राम भी जी निकालने आ गए होंगे। जी। इसके साथ एक जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा हूँ, डलहौजी यूनिवर्सिटी, उसमें भी 2 साल के डिप्लोमे हैं वेटनरी से मुतल्लिक। उसके बाद आप वेटनरी टेक्नीशियन या इस तरह असिस्टेंट की जॉब कर सकते हैं अगर वो हम करते हैं। वैसे तो वो होते हैं लाइक कॉलेज के बाद लोग करते हैं लाइक पाकिस्तान में, बट अगर किसी ने यहाँ पे आना हो 2 साल का कोर्स लेके तो वो भी किया जा सकता है। इसके अलावा भी डिफरेंट 2 ईयर 1 ईयर प्रोग्राम्स हैं वेटरनरी से रिलेटेड डिफरेंट कॉलेजेस में। लेकिन उसमें इशू ये आ जाता है कि कुछ इंटरनेशनल के लिए एलिजिबल है और कुछ इंटरनेशनल के लिए नहीं एलिजिबल। तो ये देख के कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे अगर आप कवर कर देंगे कौन सा प्रोविंस बेहतर है, मुख्तसर सा तो यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा को सपोर्ट करता है, क्यों वो थोड़ा कवर कर दें बस हाँ फिर जी। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे ना कनाडा में ये होता है कि एक इन्होंने नंबर देखना होता है, उसके मुताबिक आपको पीआर देनी होती है। तो आपको उन्होंने इंडिविजुअली नहीं देखना, उन्होंने ये भी देखना है कि आपके साथ जो अप्लाई कर रहे हैं बाकी सारे लोग उनके मुकाबले में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तो जाहिर बात है अब इंटेरियो जोन सा वो बहुत बड़ा प्रोविंस है, तो वहाँ पे जो पीआर का स्कोर है वो भी ऊपर जाता है। वहाँ पे जॉब भी डिफिकल्टी से मिलती है। अब अल्बर्टा अल्बर्टा में जोन सा इसकी फार्मिंग इसकी और सस्केचुआन की जो इसके साथ वाला प्रोविंस है इसकी फार्मिंग बहुत मशहूर है, इसका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बहुत मशहूर हैं। तो आपके लिए जो पीआर है वो बहुत इजी हो जाती है। और जब भी आप कनाडा में मास्टर करते हैं 2 साल का तो आपको 3 साल का वर्क वीज़ा मिलता है। उस 3 सालों में आपने अच्छी सी कोई जॉब को ग्रैब करना है। 1.5 साल आप अल्बर्टा में जॉब जब कर ली आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम होता है। आपका मास्टर्स का भी स्कोर डलेगा।
आपकी डिग्री भी पीछे से अच्छी है, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, बाकी सारे फैक्टर्स को मिलते हुए तो अगर आप जैसे ही 1.5 साल जॉब कर लोगे, आपके पीआर के बहुत ज़्यादा ब्राइट चांसेस हो जाएंगे। दूसरा, 3 साल का जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और आप खुद सोचें कि तब कभी ना कभी आपको अच्छी जॉब मिल ही जाएगी, अगर 3 माह में नहीं, 4 माह में नहीं, 6 माह में तो पक्की मिल जाएगी। और दूसरा ये है कि जो मैंने अभी तक देखा है, 1 मंथ मुझे पढ़ते हुए हो गया है, 2 दफ़ा हमारे पोल्ट्री के टीचर ने हमें इंडस्ट्री के डायरेक्टर से मिलवा दिया और 101 मिलवाया है। और इस तरह क्या होता है कि पहली दफ़ा अगर मेरा नाम नहीं याद हुआ तो दूसरी दफ़ा उनको मेरा नाम पता चल गया होगा, तो उन्होंने मुझे अपनी ईमेल दी। अब जब मेरी डिग्री मुकम्मल होगी, अगर उनको मैं ईमेल लिखूंगा कि मैं इंटर्नशिप करना चाहता हूँ, तो वो मेरे लिए कोई ना कोई रूम बनाएंगे। तो ये नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा इनका अच्छी है। अब दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी ये कुछ ऐसा होगा, लेकिन जो अटलांटिक प्रोविंसेस हैं, जो इस तरह के, जहाँ पे यहाँ पे सर्दी ज़्यादा पड़ती है, यहाँ पे जो सा है, तो इतनी पॉपुलेशन अभी नहीं है। तो जब पॉपुलेशन कम होती है तो चीज़ें एक्सपेंड कर रही होती हैं, चीज़ें एक्सपेंड करती हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ न्यू बनती हैं। तो यहाँ पे उस लिहाज से पीआर जोन सी है वो इजी मिल जाती है। दूसरी ये, एक अल्बर्टा में आने का बहुत बड़ा फ़ायदा जो डॉक्टर साहब मैंने देखा है कि मैं जब टोरंटो में 1 मंथ रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको कोई भी चीज़ खरीदते हो तो वहाँ पे टैक्स देते हो आप 13%, 13% जीएसटी है। यहाँ पे सिर्फ 5% जीएसटी है। उसके अलावा स्टूडेंट्स को क्रेडिट कार्ड मिलता है जिसकी लिमिट $1000 होती है, तो उस पे भी आपको 2% कैशबैक मिल जाता है। तो बेसिकली आप 3% टैक्स पे यहाँ पे, और वहाँ पे 13%। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये हर चीज़ पे लगता है। आप कोई नान भी लाते हो, दूध लाते हो, दही लाते हो, कुछ भी लाते हो, तो वहाँ पे 13% दोगे, यहाँ पे 3% दोगे। तो इन सब फैक्टर्स को भी आपने जहन में रखना है। दूसरा, ये इधर एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि कनाडा में एक तो जो रेंट है वो ज़्यादा है, और दूसरा कपड़े महंगे हैं। इसके अलावा बाकी काफ़ी अफोर्डेबल है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल कंट्री है। तो अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब पहला स्टेप होता है कि आपने एक एडमिशन लेटर लेना है किसी डीएलआई से। डीएलआई होता है डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट से, मतलब किसी भी कनाडा की यूनिवर्सिटी से, किसी भी कॉलेज से आपको वो एक्सेप्टेंस लेटर, एडमिशन लेटर मिल गया है, और ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। यस, सो आई विल ऐड। और अभी मैं ओल्ड्स में हूँ, ये जहाँ पे आप हैं जहाँ पे आप एडमिंटन, इससे 3 घंटे के फासले पे है तकरीबन। यहाँ पे जो कॉलेज है मैं उसमें काम कर रहा हूँ फिलहाल। तो उसके कार्ड पे 10% ऑफ मिल जाता है मुझे सबवे से, जहाँ पे ये ट्यूना शवारमा ये चीज़ें बर्गर्स होते हैं। और 10% ही मुझे ऑफ मिल जाता है ग्रोसरी स्टोर से, और 10% ही मिलता है एक डोनेट शॉप से। सो इस तरह जो काफ़ी बचत हो जाती है, लाइक पर मंथ $40 to $50 सेव हो जाते हैं अगर मैं 400 to 500 स्पेंड करता हूँ ग्रोसरी पे, खाने पीने पे। तो उसमें से 10% बच जाता है मुझे। और नोवा स्कोशिया में जब मैं था वहाँ पे टैक्स 15% और यहाँ पे टैक्स 5% है। तो अल्बर्टा मैंने चीप पाया, यहाँ पे चीज़ें सस्ती हैं। और अगर किसी का इस सेशन के हवाले से क्वेश्चन है तो आप काइंडली चैट में पुट कर दें या हैंड रेज करें। इस एडमिशन के हवाले से और यूनिवर्सिटी के हवाले से हम यहाँ पे बात ख़त्म करते हैं और फिर आगे वीज़े पे चलते हैं। तो आप चैट में पुट कर दें या आप हैंड रेज करें, तो मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, तो फिर आप क्वेश्चन खुद पूछ लीजिएगा। सो डॉक्टर साहब, एक बंदे ने कहा है कि काइंडली आल्सो शेयर योर सीवी एंड एसओपी एट द एंड, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। अगर वो आपकी इस लैपटॉप में है, इस सिस्टम में है, तो आप कर सकते हैं, नहीं है तो कोई मसला नहीं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कैन वी प्रेफर, थीसिस बेस्ड और कोर्स बेस्ड? आप बताएं आपने कोर्स बेस्ड क्यों प्रेफर किया था? पहली तो ये चीज़ है कि दोनों के फायदे और दोनों के नुकसान हैं। कोई भी बंदा होगा जिसको थीसिस मिल रहा होगा, वो कोर्स बेस में कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि थीसिस वालों को $2100 मंथ के मिलते हैं, जिसमें से $1000 वो अपनी फीस का रख लें, तो 1100 $1000 उनके पास जेब में आता है। बट इसका एक तो फायदा ये हो गया, लेकिन उन्होंने 5 बजे तक या 4 बजे तक लैब में बैठना है, और यहाँ पे वो पाकिस्तानी टीचर्स वाला हिसाब नहीं है। मतलब वहाँ पे भी ठीक है, वो भी अपना सारा डिफेंस वगैरह करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो बहुत स्ट्रिक्टली मैनेज करते हैं, क्योंकि उन्होंने फंडिंग किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से पकड़ी होती है। तो एक तो ये है कि आपको वो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है।
अब एक कोर्स बेस का ये है कि मुझे पढ़ने में मसला नहीं था होता, लेकिन ये जो थोड़ा टेक्निकल वर्क होता था, प्रैक्टिकल, इससे थोड़ी मैं भागता था, तो इस वजह से भी कोर्स बेस। दूसरा ये है कि मेरा मीट क्वालिटी में हो गया, तो मैं तो बहुत खुश हुआ। मैंने साथ ही वीज़ा अप्लाई किया, तो मेरा तो वो 10-15 दिन में वीज़ा आ गया। तो बाकी ये है कि आप दोनों के लिए, जब भी मैं ईमेल लिखता था किसी प्रोफेसर को, तो मैं उनको कहता था आई एम ओपन फॉर बोथ कोर्स वर्क एंड थीसिस बेसिस। और अगर आपके में उसको प्रोफाइल में लगेगा आपके पास ये रिसर्च है या उसका अलाइन कर रहा है। और कभी कभार क्या होता है कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हो, आपकी रिसर्च भी है, पब्लिकेशन भी है, लेकिन वो आपको एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उसने जो नेक्स्ट काम करना होता है, जिसकी वो फंडिंग पकड़ी होती है, उसके मुताबिक नहीं आप होते। तो वो कभी भी दिल छोटा नहीं करना, ट्राई हार्ड करते जाना है। कोर्स बेस में भी बड़ा फायदा है कि आपको, अब देखें, मैं पोल्ट्री पढ़ूंगा तो पोल्ट्री में जा सकता हूँ, बीफ पढ़ रहा हूँ तो बीफ में जा सकता हूँ, प्रिजर्वेशन देख रहा हूँ तो फ्रोजन मीट में जा सकता हूँ। लेकिन इसके भी अपने हर सब्जेक्ट के छोटे छोटे प्रोजेक्ट करने करने पड़ते हैं, और वो टाइम बेस होते हैं। तो आप ये सोचें कि आपने दोनों के लिए एफर्ट करनी है। अगर दोनों मिल जाते हैं तो फिर थीसिस बेस्ड, क्योंकि आपकी जो फाइनेंशियल प्रेशर है वो आपका सिरे से खत्म हो जाता है। और अगर आपको थीसिस बेस्ड नहीं मिलता, जैसे कि मैंने बताया है कि बहुत कम उसकी होती हैं सीट्स, फिर कोर्स बेस्ड भी बहुत अच्छा है। आप इजीली जोन सा है वो फी जोन सी है वो बना लोगे। वो हम डिस्कस करेंगे किस तरह आप फी बना सकते हो। जी, मैं इसमें थोड़ा ऐड करूंगा कि जो थीसिस बेस और कोर्स बेस है, ये डिपेंड करता है कि पास्ट में आपने क्या किया। अगर पास्ट में आप टीचर्स के साथ, प्रोफेसर्स के साथ, सीनियर्स के साथ रिसर्च प्रोजेक्ट में या रिसर्च पेपर में या रिव्यू आर्टिकल में कोलैबोरेट करते रहे हैं, लिखते रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, आपका प्लान पीएचडी करके एकेडमिया में आने का है। नंबर थ्री, आपका प्लान है कि हमें खर्चा ना करना पड़े, फीस हमारी कोई पे कर दे। तो ये तीन सूरत हाल होती हैं जिसमें आप फिर थीसी बेस में आते हैं। और अगेन, थीसी बेस में ओवरऑल कनाडा में आजकल फंडिंग चल रही है 25 से लेकर 30 हज़ार के दरमियान में पर ईयर। और उसमें से जो फीस है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट है। मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस तकरीबन 20 से 21 हज़ार है पर ईयर। और यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा की, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, 10 हज़ार है। तो मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस ज़्यादा है, तो जो फंडिंग में से जब ज़्यादा फीस कटती है तो आपको स्टाइपेंड कम मिलता है, जब फीस कम कटती है तो स्टाइपेंड ज़्यादा मिलता है। सो एनीवे, ये चीज़ें चलती रहती हैं। बट पर्पज़ होता है कि आपकी बस फीस ना हो, बाकी खर्चा पानी बंदा पूरा कर लेता है। वो आगे बात इस पे डॉक्टर साहब करेंगे कि कितने आवर्स आपको लाओ होते हैं, ये वो। और ये सारा डिपेंड करता है आपका बैकग्राउंड में ट्रैक क्या था, आप रिसर्च ट्रैक से चल रहे थे या जस्ट एडमिशन ट्रैक से। और लास्ट थिंग, जिसके पास पैसे हैं, जो पाकिस्तानी 40-50 लाख रुपया लगा सकता है यकमुश्त, वो जा सकता है कोर्स बेस में। जो यकदम 30-40 लाख नहीं लगा सकता, वो कोर्स बेस में भी नहीं जा सकता, वो थीसिस बेस में जाएगा, क्योंकि थीसिस में वो फंडिंग होती है और फ्यूचर में पीएचडी का ऑप्शन होता है। तो ये चीज़ होती है। जी डॉक्टर साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, क्या कोई ऐसा भी प्रोग्राम है कनाडा में जिसमें हम 5.5 बैंड के साथ भी अप्लाई कर सकें? रिटर्न में एक स्टूडेंट है, उसके 5.5 बैंड है। ये ना, नहीं डॉक्टर साहब, आप यूनिवर्सिटीज़ की जब रिक्वायरमेंट देखते हैं, उसके लिए इनके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि अब पीटी भी ऑलमोस्ट एक्सेप्टेबल है हर जगह। पीटी बहुत ज़्यादा इजी होता है, तो आप वो करें। तो ये मुझे तो नहीं नज़र आया कि अगर आप डीवीएम के हैं और ये competitive प्रोग्राम्स होते हैं, तो 5.5 तो किसी की भी नहीं है। इवन 6 भी ओवरऑल नहीं है। तो 6.5 तो आपका होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि आप इजीली 7 भी ले सकते हैं, या आप अभी आपके पास टाइम है जहाँ पे आपने इतने पैसे लगाने, आप 50 हज़ार का पीटी दोबारा कर लें और अच्छी तैयारी करके करें। सही है। और डॉक्टर साहब, एक और बंदे ने रिक्वेस्ट किया है कि मोटिवेशन लेटर जो आपने लिखे थे या इस वक्त के मुतालिक जो आपका ओपिनियन है वो भी शेयर करिएगा नेक्स्ट पार्ट में, जब हम मैं डॉक्यूमेंट पे डॉक्टर साहब, आएंगे। अगर उनको अभी मैं जो उनसे वो, चले मैं ना सेशन के हाँ, साथ ना हाँ, हाँ। उनको भेज के ना अपने व्हाट्सएप पे, तो मैं इधर दिखा जी, देता हूँ बच्चों को ठीक है, कहाँ आप हार्ड उतनी देर करना। में भेज लें। अगर और इसको हम एडमिशन को यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं और ये डॉक्यूमेंटेशन में इसको कवर करते हैं नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल। में। नेक्स्ट पार्ट डॉक्यूमेंटेशन पे लगाते हैं। एज यू हैव सेड अबाउट पब्लिक हेल्थ, सो फॉर वेटरनरी वी हैव टू चूज आवर रिसर्च विद पब्लिक हेल्थ और जनरल। व्हाट अबाउट द चांसेस ऑफ कंपटीशन पॉप्स? एक डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि अगर हम पब्लिक हेल्थ में आते हैं तो हमें वेटरनरी पब्लिक हेल्थ का ऑप्शन ज़्यादा मिलेगा या जनरल पब्लिक हेल्थ या मेडिकल पब्लिक हेल्थ? और एमबीबीएस वाले कितने के लोग अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा के इस प्रोग्राम में? आपका क्या आइडिया है?
ये जो सा होता है ये फिर सबके लिए सेम प्रोग्राम होता है, इसमें कोई वेटरनरी नहीं आता। बस ये है कि जब जूनोटिक डिजीजेज आप पढ़ोगे तो डीवीएम वालों को ज़्यादा फायदा होगा, जब कोई आप ह्यूमन की डिजीज पढ़ोगे तो उनको ज़्यादा फायदा होगा, अगर कोई आप ये ज्वाइंट्स वाली पढ़ेंगे तो डीपीटी को। लेकिन तब आप सिमिलर एक जैसा ही कोर्स पढ़ोगे, और उसमें क्या होगी कि अवाम की हेल्थ का आप पढ़ोगे, उसमें कुछ भी नहीं होगा। बस ये है कि 13 जेनोटिक डिजीजेज जो उनसे वो इतनी ज़्यादा डिजीजेज को बंदों को अफेक्ट करते हैं, तो वो सिर्फ ये है कि एक सिमिलर कोर्स होगा, सब बच्चों के लिए सिमिलर होता है। और एमबीबीएस वालों जो उनसे होते हैं काफ़ी ज़्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो भी प्रैक्टिस नहीं करना चाहता, या जिनका भी, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है यूके में एग्ज़ाम देने का और होने का, तो उनके लिए भी ये शॉर्टकट होता है कि किसी अच्छी कंट्री में आने का। लेकिन ये है कि आप अप्लाई कर सकते हैं, तो देख सकते हैं इसमें भी सुपरवाइजर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, तो जहाँ पे आपने इधर अप्लाई करना है साथ उस प्रोग्राम में भी अप्लाई करना चाहिए आपको। ओके, सो डॉक्टर साहब यहाँ पे हम एडमिशन और यूनिवर्सिटीज़ को क्लोज करते हैं। हमने तकरीबन 3 से 4 या 5 यूनिवर्सिटीज़ डिस्कस की हैं। सो इसी वे को अप्लाई करते हुए तरीके को आप और भी यूनिवर्सिटी सर्च कर सकते हैं, और यूनिवर्सिटीज़ में भी ऑप्शन होगा। और इंशाल्लाह, और अभी हम इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे। और जो चीज़ें आप कमेंट्स में या चैट में बता रहे हैं, उस पर भी इंशाल्लाह हम डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पे डिटेल में भी बात करेंगे। और कोई भी क्वेश्चन हो जो हम सेशन करने लगे हैं पार्ट, उसका आप चैट में भी कर सकते हैं और एंड पे पूछ भी सकते हैं। ये डॉक्टर साहब श्योर हो गया, मैं कहा मीट क्वालिटी वाला अभी खोलना है या इसको बाद में ही डॉक्यूमेंट्स का एक सेशन रख लें? डॉक्यूमेंट का सेक्शन रख लेते हैं, जिसमें आपकी चलिए ठीक सीवी, है। सब चीज़ें जो कुछ आपने अप्लाई किया था, अप्लाई करते वक्त यूज़ किया था, वो ओके। सारा हम देख लेते हैं। ओके। ओके, लेट थैंक मी यू। गिव